Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today we are going to talk about the law of conservation of energy. So basically हमने previous lecture में energy के बारे में discuss किया था. What is that? हम लोगों ने kinetic energy का formula भी derive किया था. Right? आज हम लोग पहले potential energy का formula derive करेंगे and then we will look up to the conservation of energy. उसका law और किस तरीके से एनर्जी वेन एवर वी थ्रो अ बॉडी वेन एवर अ बॉडी फॉल्स तो किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में इंटरचेंज होते रहती हैं बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. दैट इज द एनर्जी जो है कंजर्व रहती है. दैट इज द मेन थिंग एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव टुडे विद सम मैथमेटिकल थिंग्स. ठीक है. एंड ये हम लोग आज वेरिएशन देखेंगे. तो टोटल अगर हम बोलें तो आज के लेक्चर में मेनली हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टडी करेंगे. उसके कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आप रियल लाइफ में देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. ठीक है. और इन सभी चीज़ों को स्टडी करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. You all know that we do deal with the school examination as well as the Olympiad level. So basically, if you are trying for the school examination, if you are studying for the school examination, or you are studying for the Olympiad, then you can definitely watch these video lectures so that you can gain that knowledge which is required to clear the Olympiad level education. Alright, that is the main thing. Now let's see. If you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You can write this code TTB009 in the search box of the Telegram app ताकि जो 9th क्लास का चैनल है वो अपेयर हो जाए and then you are going to join that channel, access all the DPPs and study material along with the notifications. Alright. Now see, this is the team which is putting so much effort for you all and so that we are providing you the quality content you deserve so that you can achieve all your educational dreams, right? That is the main thing. आप अगर अच्छे marks चाहते हैं, आप अच्छी rank चाहते हैं, so it's on you and we are providing these contents to help you in that, right? We are working for your goals, your dreams. Now in accordance to that, हम लोगों ने आपके लिए कुछ packages भी prepare किए हैं जो कि आपके dream को पूरा होने में help करेंगे. So there are two type of packages and if you want to access them, you can go on our website that is www.talkingtextbooks.in. So if you go on our website, then you are going to get the two type of packages, the full package and the test series. Full package contains all the necessary minimum things you need to crack any examination and test series includes the testing part. So the full package includes the study material, live classes, homework submission feature, bi-weekly quizzes, periodic test papers. एंड दी पीरियोडिक टेस्ट पेपर जो कि हैं वो टेस्ट सीरीज में भी इंक्लूडेड हैं. ठीक है. टेस्ट सीरीज में आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, बाई वीकली क्विजेज और लाइव क्लासेस ये आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा. सो बेसिकली दीज टू टाइप ऑफ द पैकेजेस. Now if you want to buy them, if you want to join them, then you can write my code CYLIVE to get a 30% discount. And if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. So let's get started. ये चीज़ तो आपको पहले से पता थी. So all right, so let's promise ourselves that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. ये आपको ज़रूर करना है. Revision is the key. Again and again I'm telling you, आपको सिर्फ आपके एवरेज से और टॉप मोस्ट बच्चे बनने में सिर्फ एक ही जो है कमी है या फिर जो एक ही स्टेप है जो आपको लेना है, दैट इज द रिविजन. If you revise more and more, you are going to get to understand all the concepts, right? तब आप रटाफिकेशन को छोड़ के फिर अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगोगे चीज़ों को. And that is why you should revise it again and again. All right? Now let's get started. आज का हमारा लेक्चर है Law of Conservation of Energy. We will be talking about that. But before talking about Law of Conservation of Energy, we are going to see the potential energy. Then we will be talking about the law of conservation energy and then we will be talking about its examples in our real life, the conversions we are going to see in our real life. ठीक है. तो देखो हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं. सो मैं आपको पहले एक एग्जांपल बताती हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया हो जाएगा. ठीक है. लेट इट बी कि एक टेबल है और ये हमने बना दी है टेबल. ऑलराइट, दिस इज इमेजिन दिस इज अ टेबल. यहाँ पर रखी हुई हैं दो बॉल्स, आइदर इट बी फुटबॉल्स, बड़ी बॉल्स मानते हैं. ठीक है. लेट इट बी कि भाई यहाँ पर दो बॉल्स रखी हुई हैं. ये जो दो फुटबॉल्स हैं इनमें से एक फुटबॉल को उठाकर आप क्या करते हैं, टेबल के ऊपर रख देते हैं. ठीक है. ये जो हाइट है, दिस हाइट इज h. ऑलराइट, तो आप क्या कर रहे हैं, इस बॉल को, फर्स्ट वाली जो बॉल है, फर्स्ट वाली बॉल को उठा के आप टेबल पे रख देते हैं.
ठीक है। अब क्योंकि आपने उठा के टेबल पे रख दिया, आपने उस ऑब्जेक्ट का, इस बॉल का क्या कर दिया है, डिस्प्लेसमेंट कर दिया है, आपने फोर्स लगाया है, तो दैट मीन्स यू हैव डन सम वर्क। ठीक है, तो आपने क्या किया, बॉल को उठा के टेबल पे रख दिया, तो आपने कुछ काम किया इसके ऊपर। ठीक है, यू हैव डन सम वर्क बिकॉज जो बॉल है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपने फोर्स लगाया, राइट, तो यू हैव डन सम वर्क ऑन द बॉल। ये जो बॉल के ऊपर अब आपने वर्क किया वो तो ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, या फिर आपने बहुत ही इसको एज पे रखा, ठीक है, तो ये क्या हुआ, थोड़ी ही देर बाद नीचे अपने आप फॉल हो गई। ठीक है, फॉल होते ही इसने सेकेंड बॉल को, इस बॉल को हिट किया। जैसे ये हिट किया, सेकेंड बॉल अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई, राइट। तो ये एनर्जी पहली वाली बॉल के पास कहाँ से आई कि उसने सेकेंड वाली बॉल को डिस्प्लेस कर दिया। ये जो एनर्जी इसके पास थी वो कहाँ से आई, फर्स्ट वाली बॉल के पास। सो बेसिकली हम लोगों ने जो हमारा एनर्जी वाला लेक्चर देखा था, तो उसमें हमने ये सीखा था कि जो भी वर्क किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो उस ऑब्जेक्ट में एज एन एनर्जी स्टोर हो जाता है। इसी वजह से जब आपने इस बॉल को उठा के एच पोजीशन, एच हाइट पर लेकर गए और उसे रख दिया, तो यू हैव डन सम वर्क ऑन द बॉल, और बॉल के अंदर वही वर्क एज एन एनर्जी सेव हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है, तो अब बॉल के पास कुछ एनर्जी थी, जब वो हाइट एच पे चली गई तो उसके पास कुछ एनर्जी थी। फिर जब वो नीचे आने लगी तो वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि बॉल मूव करने लगी, राइट। जैसे ही वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, उसने इस सेकेंड बॉल को हिट किया, एंड आफ्टर हिटिंग सेकेंड बॉल में जो एनर्जी ट्रांसफर हो गई, एंड इट गोज ऑन मूविंग। ठीक है, एंड एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू गेट कि जो आपने वर्क डन किया था एक्चुअली में वो ही जाके फर्स्ट वाली बॉल में स्टोर हो गया। तो जब वो नीचे आई तो उसने क्या किया, दूसरी बॉल को उसी एनर्जी से हिट किया। सो बेसिकली अगर किसी ऑब्जेक्ट में पोजीशन की वजह से एनर्जी आ जाती है, पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी आ जाती है, दैट इज टर्म्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने इस बॉल को उठाकर जब ऊपर रखा तो एक्चुअली में आपने इसे पोटेंशियल एनर्जी दे दी। वो जो वर्क डन आपने किया वो इसी ऑब्जेक्ट में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। ऑलराइट, सो दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू नो अबाउट द एनर्जी. So let's talk about the definition. The energy possessed by a body by virtue of its position or shape or configuration is known as potential energy. Whenever you change the position of the object, आप उसे ground से किसी h height पर लेके जा रहे हैं और ऊपर लेके जा रहे हैं, so you are going to give it some potential energy according to that height. ठीक है, तो height की वजह से जो है change जो उसका आता है position, that is the position, right? तो पोजीशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है, बिकॉज ऑफ दैट पोजीशन, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी. आइदर यू आर गोइंग टू से उसका शेप चेंज होने की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी आती है, या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी आती है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. इसके कुछ एग्जाम्पल जो रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं वो क्या है, देखिए. वाटर स्टोर्ड इन डैम हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन. डैम में क्या होता है, डैम में बहुत हाइट तक पानी को फिल किया जाता है, राइट. तो पानी की हाइट काफी ज्यादा हो जाती है. बिकॉज ऑफ दैट हाइट ओनली उसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है. तो जब कभी भी गेट खोले जाते हैं, डैम के गेट खोले जाते हैं, तो पानी बहुत फोर्स से आता है. रीजन, उसके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आई, वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी में, और वो बहुत तेजी से बाहर आ जाता है. ठीक है, सो द रीजन इज बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, उसका हाइट बहुत ज्यादा होता है, उसका पोजीशन बहुत ज्यादा होता है, तो इट हैज मोर पोटेंशियल एनर्जी. फिर आप देख रहे नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ वाउंड स्प्रिंग ऑफ अ वॉच हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स शेप. जो आप देख सकते हैं अलग अलग यू कैन से जो चीजें रहती है, फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग. स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसका शेप चेंज कर देंगे. उस वक्त उसके अंदर, बिकॉज आपने जब उसका शेप चेंज किया, यू डिड सम वर्क, और वही वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है, राइट. एंड दैट इज वाई जैसे आप उसको छोड़ते हो वो कैसे करने लग जाता है, वाइब्रेट करने लग जाता है. तो वही पोटेंशियल एनर्जी फिर दूसरी एनर्जीज में चेंज होकर, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होकर वो क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है. एंड व्हेनेवर, जब आप अपने वो तीर कमान तो देखे होंगे, राइट. सो व्हाट यू डू, जब आप तीर मारते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रेच करते हैं, राइट. बो को स्ट्रेच करते हैं. सो जब आप स्ट्रेच करते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है, राइट. और यही शेप किसमें, मतलब जो आपने वर्क किया इन चेंजिंग शेप ऑफ दैट बो, वो उसका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो नाउ अब बो के पास पोटेंशियल एनर्जी है,
और जैसे ही आप एरो को छोड़ देते हो वही पोटेंशियल एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी बन के वो एरो से दूर तक चले जाती है, राइट। सो यहाँ पे आपको समझना है कि कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन की वजह से किसी एनर्जी को ऑब्टेन करती है या फिर उसके शेप की वजह से किसी एनर्जी को ऑब्टेन करती है, सो दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट इट। आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पहला तो पोजीशन की वजह से, दूसरा उसका शेप की वजह से, उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है। सो पहला जो पोजीशन की वजह से है दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो देखिए, एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, दैट इज ग्राउंड से, अर्थ के ग्राउंड से उसकी कितनी ज्यादा हाइट है, इस पे बेसिस जो एनर्जी उसके पास होगी, ऑब्जेक्ट के पास होगी, वो एनर्जी वुड बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि अगर आप किसी माउंटेन पर किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे, लेट इट बी कि कोई एक स्टोन माउंटेन के ऊपर है, ठीक है, उस स्टोन के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी एज कंपैरिजन टू द स्टोन जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है, ऑलराइट। तो जब ऊपर वाला स्टोन जब नीचे गिरता है तो वो कितनी तेजी से गिरता है, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है और उसको तेजी से गिरने पर मजबूर कर देती है। हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करता है, दैट इज नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट द थिंग इज कि अगर पोजीशन, उसके हाइट की वजह से जो एनर्जी किसी बॉडी में होती है दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वहीं पर सेकेंड एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब आप किसी बॉडी का शेप चेंज कर देते हो, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है, बिकॉज यू आर डूइंग सम वर्क इन चेंजिंग द शेप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम बिल्कुल बोल सकते हैं उसका शेप जब डीफॉर्म हो जाता है, जैसे कि आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, ठीक है, तो रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, दैट मीन्स इन स्ट्रेचिंग दैट रबर बैंड यू आर डूइंग सम वर्क एंड दैट वर्क स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड दैट रबर। तो वो जैसे आप छोड़ेंगे तो फिर वो क्या करेगा, मोशन करने लगेगा, राइट। इसके लिए क्यों, क्योंकि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी था वो ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, राइट। तो यू कैन से कि यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एंड दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड दी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे एक स्प्रिंग है, अगर आप उसको, लेट्स से स्प्रिंग है, उसका नेचुरल लेंथ कुछ भी L मान लो, और आप उसको L लेंथ से X और एक्सटेंड कर रहे हो, तो जितना आप एक्सटेंड करोगे उसकी लेंथ को, ठीक है, वो और स्प्रिंग कांस्टेंट, इन दोनों के रिलेशन से आपको उसकी एनर्जी पता चल जाएगी। जैसे आप देखिए, अगर K उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है किसी भी स्प्रिंग का, और आपने उसको X लेंथ तक जो है एक्स्ट्रा X लेंथ आपने उसे दे दी स्प्रिंग को स्ट्रेच करके, सो अब उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ kx², ठीक है, दैट इज द यू कैन से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द स्प्रिंग, ठीक है। तो अब इन्हें फटाफट से नोट कर लीजिए। All right, now let's move up to the next thing. That is, we are going to talk about the potential energy of an object at height h. जब आप किसी बॉडी को h हाइट पर रखते हो तो कितनी एनर्जी एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें सेव होती है, ठीक है, कितना पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होता है द बॉडी एट हाइट h, ये हम लोग स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नो अबाउट कि भाई जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी के अंदर, वो किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ द हाइट। तो वो जितनी ज्यादा हाइट पे होगा उसके पास उतनी ही ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो नॉर्मली अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ द हाइट, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ये काम करना है कि भाई एक लेट इट बी, हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड पर हमने क्या किया हुआ है, एक बॉक्स को रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज द बॉक्स ऑफ मास m, ठीक है, कोई भी ब्लॉक, कोई भी बॉडी, कोई भी मास, हमने बोल दिया m है उसका मास, ठीक है, ये जमीन पर रखा हुआ है, ग्राउंड पर रखा हुआ है, हम इसको h हाइट तक लेकर जाना चाहते हैं। सो वी आर गोइंग टू पुट इट एट सम हाइट h, हम इसे h हाइट तक लेकर चले जाएंगे।
ठीक है, लेट इट बी कि भाई वो कहाँ तक गया है, h हाइट तक गया है। सो जब वो ग्राउंड पे था और जब वो हाइट h पे चला गया तो h हाइट पर जाने पर इसके पास कितनी एनर्जी हो गई, ये हम लोग बात करेंगे, डिस्कस, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हैं तो हम कितना फोर्स लगाएंगे, जितना उसका खुद का वेट है। अगर हम उसका उतना वेट लगा सकते हैं तो तभी जाके वो बॉडी ऊपर उठेगी, बिल्कुल सही बात है। सो हम जो फोर्स लगा रहे हैं उस बॉडी को लिफ्ट करने में वो हम कितना फोर्स लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। सो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स होगा दैट वुड बी हाउ मच, दैट वुड बी mg, बॉडी का मास इनटू ग्रेविटी, दैट वुड बी द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर वेट जो है उसका बॉडी का mg है। तो जो जितना फोर्स वेट जो की है, जितना फोर्स अर्थ लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम बोलेंगे, दैट इज mg, ऑल्सो इट्स वेट इज ऑल्सो mg, राइट। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमने जितना फोर्स लगाया बॉडी को ऊपर उठाने में वो है F mg, ठीक है, और बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो धरती माता फोर्स लगा रही है वो है Fg, दैट इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, h हाइट तक उसको रेज कर दिया है भाई, बॉडी को उठा के कितना फोर्स लगा के, F इक्वल्स टू mg, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, लेट इट बी, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वर्क डन, कितना काम किया गया बाय द फोर्स वी अप्लाइड, हमने बॉडी पे फोर्स लगाया, ठीक है, हमने फोर्स लगाया mg और बॉडी को जमीन से उठा के h हाइट तक लेकर आ गए, ठीक है। तो हमने कितना वर्क डन किया, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, अब देखिए हमने जो काम किया, हमने जो फोर्स लगाया है बॉडी को ऐसे ऊपर उठाने में, तो बॉडी भी ऊपर आ रही है, दैट मीन्स बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन में, हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, बॉडी भी ऊपर आ रही है, सो इट इज इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो कॉस का वैल्यू होगा दैट इज वर्क डन, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, 0 हाइट से h हाइट तक चली गई, ठीक है। तो और ये जो हमारे पास ये वी कैन से फोर्स, ठीक है, तो ये कितना फोर्स हो गया, F S cos 0 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है और फोर्स भी ऊपर लग रहा है, तो दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के ऊपर ही, दोनों के बीच में जो एंगल है दैट वुड बी 0, सेम डायरेक्शन में है। सो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। So you are going to get the work done as F, ठीक है, H बस, क्योंकि cos ये जो है cos 0 डिग्री तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो you are going to get, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, cos 0 डिग्री जो है वो 1 है, ठीक है। अब देखिए F इंटू एच, हमारे पास ये जो F था वो कितना है, mg, क्योंकि हम कितना लगा रहे हैं, बॉडी के वेट के बराबर फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। सो यू आर गोइंग टू गेट mgh, तुम्हें ये वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। और ये वर्क डन कब, किसके लिए है, वी कैन से ये जो वर्क डन है ये वो वर्क डन है जो हम कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं। लेट्स सी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है इसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, वो हम देखते हैं। अभी वापस से हम इसका पूरा डायग्राम बना देते हैं, दिस इज m, ठीक है, और हम इसको एक h हाइट तक लेकर गए हैं, ठीक है, लेट इट बी, दिस इज दी h हाइट, ठीक है। अब हम लोगों ने जो फोर्स लगाया था वो तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया था और इसके ऊपर जो इसका वेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। सो देखते हैं अभी, वर्क डन बाय दी ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा क्या होगा, वो फोर्स जो कि ग्रेविटी लगा रही है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए। सो एफ जी, ठीक है, और हाइट h है हमारी, यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है, cos 180 डिग्री। वाई सो 180 डिग्री क्यों आ रहा है, क्योंकि जो बॉडी है वो ऊपर जा रही है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है, राइट, ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ ही खींचती है ऑब्जेक्ट को,
तो मतलब ग्रेविटी जो फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉडी के ऊपर लग रहा है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बॉडी जा अपवर्ड रही है। सो दीज आर ऑपोजिट, 180 डिग्री है दोनों के बीच में, इसीलिए हमने cos 180 डिग्री लिख दिया। सो यहाँ पर जो है अब Fg जो है वो कितना है, mg, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, mgh, और माइनस का 1 क्यों, क्योंकि cos 180 डिग्री जो होता है उसका वैल्यू होता है माइनस का 1। तो अब देखो वर्क डन कितना आ गया यहाँ पे, माइनस mgh, ठीक है, ये है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपको पता है यही जो वर्क डन है एक्चुअली में द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो यहां पे हम लिखने वाले हैं द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये जो है मतलब हम लोगों ने जो काम किया था वो क्या काम किया था, वो यही तो काम किया था, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी लग रहा है लेकिन फिर भी उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, बॉडी को ऊपर लेकर जा रहे हैं, राइट। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स is stored as gravitational potential energy, is stored as gravitational potential energy, ठीक है। सो द पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U, कैपिटल U से पोटेंशियल एनर्जी को हम बताते हैं। सो UG यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉडी इज ऑपोजिट ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अगेंस्ट में काम चल रहा है ना, दैट इज वाई। सो यू आर गोइंग टू गेट mgh, तो दैट मीन्स बॉडी का वेट मल्टीप्लाइड बाय बॉडी जितने हाइट तक गई। अगर हम ये कैलकुलेट कर देते हैं तो वी कैन कैलकुलेट दी पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड दैट बॉडी, बॉडी के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो हम बता सकते हैं। सो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है बॉडी के, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, एंड हाइट पे डिपेंड करती है, बॉडी कितनी ज़्यादा ऊपर है। जितना ज़्यादा बॉडी ऊपर होगी उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। सो अब आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लुक अप टू द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वो पोटेंशियल एनर्जी जब कभी भी किसी ऊंची जगह से किसी ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं, लेट इट बी कि भाई h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा रहे हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, उस टाइम पर बॉडी के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। सो बेसिकली एनर्जी का कन्वर्जन चल रहा है। सो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम सबसे पहला जो देख रहे हैं दैट इज conversion of the potential energy into kinetic energy. So when a body freely falling body, जब हम बोलेंगे for a freely falling body potential energy changes into kinetic energy. Let's prove it how and let's see how it happens. Alright, तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि भाई मान लो कोई बॉडी जो है, मैं यहाँ पर डायग्राम बना देती हूँ, मान लो कोई बॉडी जो है वो h हाइट पे ऑलरेडी रखी हुई है, ठीक है, लेट इट बी इट इज एट रेस्ट एट h हाइट, ठीक है, m मास की बॉडी है, ठीक है। तो ये देखो ये है इसका A पॉइंट जो कि क्या है हाईएस्ट पॉइंट,
ठीक है, h हाइट पे रखी हुई है ना, तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। और जब ये नीचे गिरेगी तो ये ग्राउंड पे चले जाएगी, और जब ये ग्राउंड पे चले जाएगी तो ये इसका लोवेस्ट पॉइंट होगा। तो लेट इट बी दिस पॉइंट इज बी पॉइंट, जो कि क्या है, लोवेस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके हाईएस्ट पॉइंट के पास, हाईएस्ट पॉइंट पर इसके पास कितनी एनर्जी है और लोवेस्ट पॉइंट पर कितनी एनर्जी होगी। लेट्स सी। तो देखो, एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, जब ये सबसे ऊपर थी, जब ये h हाइट पर थी, तो देखिए अब हमें ये बात पता है कि जब कोई बॉडी h हाइट पर होती है तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, mgh। और बॉडी अब क्योंकि रेस्ट पे है सबसे ऊपर, तो रेस्ट पे है मतलब वेलोसिटी जीरो। तो इसके केस में हम बोल सकते हैं कि भाई जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, mgh होगी, राइट। बॉडी जब हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर बॉडी रेस्ट पर रखी हुई है, इसका मतलब बॉडी के पास अभी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और कितनी है, mgh, राइट। बॉडी का मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बॉडी की हाइट कितना ऊपर है। साथ ही साथ हम ये बात जानते हैं कि भाई क्योंकि बॉडी आराम से रखी हुई है, इट्स नॉट मूविंग एट ऑल, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी इसके पास क्या होगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी वुड बी जीरो है, ठीक है। अब सिचुएशन कुछ चेंज होती है। अब सिचुएशन क्या है, अब ये क्या हो रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, लेट इट बी। अब ये गिरना स्टार्ट कर रही है, तो जैसे जैसे नीचे गिर रही है हमें ये बात पता है कि भाई क्योंकि इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगता है तो इसका वेलोसिटी नीचे जाते जाते इंक्रीज होता है। क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, जीरो से किसी और वैल्यू तक जा रहा है, दैट मीन्स कि ये जो काइनेटिक एनर्जी जो कि वेलोसिटी की वजह से आती है वो बढ़नी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, राइट। तो हम यहां पे लिख देते हैं एज बॉडी फॉल्स it gains velocity, as body falls it gains velocity and thus kinetic energy। ठीक है, जैसे जैसे बॉडी फॉल होती है, गिरती है, तो क्योंकि उसमें वेलोसिटी अब इंक्रीज हो जाती है, उसको वेलोसिटी ज्यादा मिलते जाती है, वैसे ही उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आप इसे लिखें, फिर हम लोवेस्ट पॉइंट पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं इसी बॉडी का जब वो लोवेस्ट पॉइंट पे थी तब। ठीक है, तो वापस से मैं डायग्राम बना देती हूँ कि भाई बॉडी जो है वो h हाइट पर है फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ये है हाईएस्ट पॉइंट, और ये है लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखिए लोवेस्ट पॉइंट पर, एट लोवेस्ट पॉइंट, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट पे अब हाइट बिल्कुल जीरो हो चुकी है, बॉडी बिल्कुल गिरते 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 बिल्कुल नीचे आ चुकी है, एंड हाइट तो जीरो हो गई उसके पास, बट उसके पास अभी बहुत ज्यादा जो है वेलोसिटी है। दैट मीन्स जीरो से उसकी जो वेलोसिटी बढ़ते 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 अब बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो इसका मतलब अब इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। सो लोवेस्ट पॉइंट पर क्योंकि इसकी हाइट बिल्कुल जीरो हो चुकी है, अभी बिल्कुल ग्राउंड पर आ चुकी है बॉडी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो कितनी हो जाएगी, जीरो। वहीं अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। मान लो कि भाई आखिर तक आते आते, ग्राउंड तक आते आते इसके पास v वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, हाफ mv² हो गई है लोवेस्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई जब ये ऊपर थी तो इसके पास सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, mgh इसका जो वैल्यू है थी उसके पास एनर्जी। जब ये नीचे पहुंची, लोवेस्ट पॉइंट तक पहुंची, तब इसके पास एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये हाफ mv² उसी mgh के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, सो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या कर रहे हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, राइट, दैट मीन उसके पास जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू राइट दी इक्वेशन एज वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, u हो जाएगा 0 क्योंकि जब वो ऊपर थी बॉडी तो वो रेस्ट पे थी, जब वो नीचे गिर रही थी तब उसके पास वेलोसिटी आ रही थी, तो ये हो गया 0, तो इट वुड बी 2gh। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2gh। लेट्स पुट दिस v स्क्वायर, ठीक है, उसको हम 2gh रख देते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी वुड बी हाउ मच, काइनेटिक एनर्जी वुड बी m, हाफ m और 2gh। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर गोइंग टू गेट दी mgh, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे हमें यह पता चला कि जब बॉडी ऊपर सबसे होती है, किसी हाइट पर होती है, तो उसके पास सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर वो जब वो नीचे गिरने लगती है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसे काइनेटिक एनर्जी मिलने लगती है ना, और पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगती है क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। जब वो लोवेस्ट पॉइंट पे चला जाए, मतलब बिल्कुल ऑन द ग्राउंड पहुंच जाती है, तब उसके पास पूरी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाती है और उसके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, राइट। अब यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, ये हमने अभी यहाँ प्रूव किया यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुटअप किया, वी स्क्वायर का वैल्यू जब हमने पुटअप किया तो हमें mgh का वैल्यू पता चला, मतलब यही हाफ mv स्क्वायर इसी mgh के बराबर है। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली बॉडी के पास थी वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होके काइनेटिक एनर्जी में चली गई, राइट। तो दैट मीन जब कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कंजर्व, ये हमने देख लिया, राइट। इसको फटाफट से नोट कर लेंगे, फिर हम एक और पॉइंट देखेंगे, जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं और ये कंडीशन देखते हैं कि अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाए तब क्या पॉसिबल होता है, तब क्या ऐसा ही कन्वर्जन होता है या नहीं होता है। लेट्स लुक अप टू दैट। तो देखिए अब की बार हमने क्या किया, हमने बॉडी को जमीन से ऊपर फेंका, ठीक है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, बॉडी को 0 हाइट से किसी एक h हाइट तक फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बात हमें पता है कि जब हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो हम पहले वेलोसिटी देते हैं बॉडी को, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लेट इट बी, भाई बॉडी यहाँ थी m मास की बॉडी, इसको हमने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका और ये किसी h हाइट तक चली गई, ठीक है, ये बॉडी h हाइट तक चली गई है ना। अब यहाँ पे हम सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर देखते हैं, तो एट लोवेस्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए, अगर हम एट लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो लोवेस्ट पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, हाइट तो 0 है ना बॉडी की, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, हाफ mu स्क्वायर, u मतलब जो हमने इनिशियल वेलोसिटी इसको दी है। सो देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mu स्क्वायर, बिकॉज हमने बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो u वेलोसिटी से वो ऊपर जा रही है तो इसका मतलब उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। अभी लोवेस्ट पॉइंट पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी, क्यों, क्योंकि वो तो ग्राउंड पे ही है, हाइट तो उसकी अभी बढ़ी ही नहीं, तो हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी वुड बी 0, ठीक है। फिर अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है, एज बॉडी मूविंग अप, एज गोइंग अप, क्या हो रहा होता है एक्चुअली में, जैसे ही वो ऊपर जा रही होती है धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, हाइट इंक्रीज होते जाती है, ठीक है। एज गोइंग अप वेलोसिटी डिक्रीजेस, ठीक है, एंड हाइट इंक्रीजेस,
अब हम बात करते हैं हाईएस्ट पॉइंट की, क्योंकि बॉडी अब क्या करिए बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई। अब देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा। एट हाईएस्ट पॉइंट, ये बात तो हमें पता है ना, जब कभी हम बॉडी को ऐसे फेंकते हैं ऊपर तो वो एक हाइट तक जाती है, और ऊपर जाते ही मैक्सिमम हाइट तक जाते ही वो स्टॉप हो जाती है, मोमेंटरी रेस्ट पर आ जाती है। मोमेंटरी मतलब बिल्कुल मोमेंट के लिए स्टॉप हो जाती है, एंड देन इट कम्स डाउन, राइट। तो वो जो मोमेंटरी स्टॉप पे है उस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वहां पे क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी तो हो गई जीरो, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो तो जीरो हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी हो गई जीरो। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो अब कितने हाइट पे पहुंच चुकी है, एच हाइट पे पहुंच चुकी है, तो मतलब अब इसके पास mgh हो जानी चाहिए। सो mgh इसके पास हो गई है, राइट। तो इसका मतलब यहां पर हमें कुछ ना कुछ ऐसा देखना होगा कि हमें यहां पर क्या मिल सके, वी आर गोइंग टू गेट दी वेलोसिटी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको तो ये देखना है कि हमने तो दी थी काइनेटिक एनर्जी, अब ऊपर चली गई, ऊपर जाते जाते काइनेटिक एनर्जी तो खत्म, तो मतलब सारा का सारा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये बात तो समझ में आई। पर क्या ये हाफ एम यू स्क्वायर और ये एम जी एच आपस में सचमुच में बराबर हैं कि नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं वापस यूजिंग दी इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं, तो आप फटाफट से इसे नोट कर लें, ठीक है। फिर हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में इन दोनों को प्रूव करेंगे कि भाई ये जो काइनेटिक एनर्जी पहले हमने दी थी वही इसी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रही हूँ, एंड अगेन आई एम ड्राइंग दी फोटो ऑफ दी डायग्राम आई कैन से, ठीक है। उसको यहाँ से हमने बॉडी को ऊपर भेजा भाई, u वेलोसिटी से बॉडी चली गई h हाइट तक, ठीक है। ये है हाईएस्ट पॉइंट, ये है लोवेस्ट पॉइंट। अब देखिए यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हमें ये बात पता है कि भाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है, 2as होता है। अभी हम ऐसे a ही लिखेंगे इसे। अब देखिए हमने क्या किया था, जो इनिशियल वेलोसिटी दी थी वो तो हमने u दी थी, फाइनल जीरो हो जानी चाहिए, तो भाई जो हमारा v है वो तो हो जाएगा जीरो, और क्या क्या हो जाएगा, a बन जाएगा माइनस का g, क्यों, क्योंकि अपोजिट टू दी यू कैन से मोशन जा रही है बॉडी, राइट, अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी ऊपर जा रही है। फिर यहाँ पे जो s है वो h के बराबर हो जाएगा, मतलब हाइट, जो डिस्प्लेसमेंट है वो एज अ हाइट में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2gh, तो आपको यू स्क्वायर बराबर क्या मिलना चाहिए, 2gh मिलना चाहिए। यहाँ से gh का वैल्यू ले लो तुम, gh का वैल्यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2। अब इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो हमारा आया था mgh यहाँ पे पुट कर देते हैं, gh की जगह पे हम यू स्क्वायर बाय 2 रख देते हैं, ठीक है। तो m यू स्क्वायर बाय 2 अरेंज करने पे, रीअरेंज करने पे यू आर गोइंग टू गेट हाफ एम यू स्क्वायर, जो कि क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी बॉडी के पास थी। तो मतलब जो बॉडी को हमने काइनेटिक एनर्जी देकर भेजा था वही एनर्जी ऊपर जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, दोनों आपस में बराबर हैं, ये चीज हमें पता चल चुका है। इसका मतलब कि एनर्जी जो है कंजर्व है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस कन्वर्ट हो गई है फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर, ठीक है। फटाफट से इसे नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए
अब हम देखते हैं कि हमने ये जब बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी नीचे आ रही है, तो हमने ये देख लिया कि कब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और कब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो होता क्या है एक्चुअली में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, हम लोग उसको देखते हैं। सो देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कि इसके पीछे छुप गया है, ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम इसको पहले पूरा लिख देंगे वरना फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसका स्टेटमेंट क्या है। ऑलराइट, दैट इज, मैं हेडिंग वापस लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट हम लोग यहां देख रहे हैं। सो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो एनर्जी है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसका मतलब कोई भी एनर्जी, कहीं पर भी कैसी भी एनर्जी अगर आपके आसपास है, इफ यू आर यूजिंग दैट एनर्जी, तो आप उसको खत्म नहीं कर रहे हैं, आप एनर्जी खत्म नहीं कर रहे हैं, आप उसको किसी और ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं जिसको अब यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इसका मेन काम है जो हमें पता होना चाहिए। सो बहुत सारी एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आपने क्या किया, पानी को गर्म किया, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, आपने उसको रख दिया, ठीक है, गर्म करके ग्लास में, कांच के ग्लास में गर्म पानी डाल दिया एंड यू कैप दैट एट द रूम टेम्परेचर, उसको बढ़िया सा रूम में रख दिया। थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा, राइट। तो जो पानी के अंदर यू कैन से हीट एनर्जी थी, आपने उसको हीट एनर्जी दी तो पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, अब वो गर्म हो गया, तो उसके पास हीट एनर्जी थी, ठीक है। अब जब वो ठंडा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी एनर्जी जो थी वो निकल कर एटमोस्फेयर में चली गई, इन्वायरमेंट में चली गई, राइट। तो जब वो पानी के अंदर थी, यू कैन यूज इट, आप गर्म पानी यूज कर सकते थे, आप पी सकते थे, उसको किसी और काम में ले सकते थे, यू कैन यूज दैट हीट एनर्जी। बट जब पानी ठंडा हो गया है, वो सारी एनर्जी इन्वायरमेंट में चली गई है, तो इन्वायरमेंट में जो एनर्जी चली गई है, गुम हो गई है, आप उस इन्वायरमेंट की एनर्जी को वापस से लाके उस पानी को गर्म नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स आपने एक यूजिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो अब यूज नहीं हो सकता, राइट। तो हमको ऐसा लगता है कि एनर्जी खत्म हो गई, हीट एनर्जी चली गई मतलब एनर्जी खत्म हो गई, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है इस ऐसे फॉर्म में जिनको हम अब यूज नहीं कर सकते। आप एनवायरमेंट से वापस से वही हीट एनर्जी निकाल कर पानी को देकर गर्म नहीं कर सकते, ठीक है। यही इसका मेन यू कैन से समझने वाली बात है कि इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर हम देखते हैं तो ये बोल सकते हैं कि आप एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं करते, आप एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं करते, आप उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। कभी कभी क्या होता है कि एक फॉर्म की एनर्जी कई सारे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से कुछ यूजेबल फॉर्म भी होते हैं, कुछ नॉन यूजेबल फॉर्म भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एवरी टाइम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वैलिड रहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू नो अबाउट इट, ठीक है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कहाँ पर कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है एनर्जी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। पहला देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स। तो मैकेनिकल एनर्जी लाइक यू आर मूविंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यू आर रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट, तो वो किस तरीके से दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमें जो है यहाँ पे उसका मिलता है, जनरेटर का मिलता है, जहां पर आप मैकेनिकल एनर्जी से यानी बॉडी को जो है टर्बाइन उसको रोटेट करते हैं बिकॉज ऑफ दैट जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो आप अपनी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। फिर देखिए, when two stones are rubbed together fire is produced, जब आप दो स्टोन्स को रब करते हो तो वहां पे आप मैकेनिकल एनर्जी, बॉडी को रब करवा रहे हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट मैकेनिकल एनर्जी यू गिव टू द स्टोन्स, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वहां पे आग लग जाती है, स्पार्क प्रोड्यूस हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी तुमने एनर्जी कन्वर्ट की। फिर देखो, वाइब्रेटिंग बॉडीज जो होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो आप पहले बॉडी को वाइब्रेट करते हो, मतलब यू प्रोवाइड दी मैकेनिकल एनर्जी, आपने बॉडी को वाइब्रेट करवाया and then that vibration converts into the sound energy, so this mechanical energy is converted into the sound energy, ठीक है। फिर देखिए, डायनामो, दैट इज दी हाउ वी आर यू कैन से जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप कभी भी डायनामो को रोटेट करते हो तो व्हाट हैपेंस
क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो दैट मीन्स वही मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। सो ये कन्वर्जन है मैकेनिकल का अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हीट इनटू अदर फॉर्म्स। तो देखो हीट एनर्जी हीट इंजन्स में मैकेनिकल में चेंज हो जाती है। जैसे हीट इंजन्स मीन्स यू आर गोइंग टू गिव द हीट एनर्जी, दैट मीन्स आप किस तरीके से उनको हीट एनर्जी में देते हैं। लेट इट बी जैसे गर्म कोयला अगर हम बोले तो, ठीक है। तो जैसे स्टीम इंजन्स होते थे, तो स्टीम इंजन में क्या होता था, आपको स्टीम बनानी पड़ती थी पहले, राइट। तो यू आर गोइंग टू गिव दी हीट टू द कोल, कोल जलता है, देन पानी बॉयल होता है, स्टीम निकलती है, एंड दैट हीट एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो दूसरे कामों में आती है। सो ये हीट एनर्जी जो है वो चीज़ों को रोटेट करने में, मशीन्स को वर्कआउट करवाने में इस तरीके से यूज हो जाती है। तो वो हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू सम अनदर काइंड ऑफ एनर्जी, राइट। मैकेनिकल में चेंज हो गए, अगर मशीन काम करने लगे, रोटेट करने लग गई। हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ही जो वायर होता है, फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, जब वो हीट अप हो जाता है तो वही क्या करता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखिए, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। और जब आप कभी किसी बॉडी को हीट अप करते हो तो उसका केमिकल कंपाउंड चेंज हो जाता है। सो बेसिकली हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, राइट। वो कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल्स चेंज में कंपाउंड अलग बन जाते हैं, राइट। दैट इज ऑल्सो द मेन थिंग यू नीड टू नो अबाउट। अब देखो, कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स। कैसे साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं, राइट। तो इस तरीके से एनर्जी चेंज हो जाती है। फिर आप देखिए कि जो सोल्जर्स होते हैं, वो सोल्जर्स जब कभी भी किसी एक ब्रिज पर से जाते हैं और एक सेम फ्रीक्वेंसी, ब्रिज की जितनी फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी पे अगर वो मार्च पास्ट करते हुए निकल जाते हैं तो ब्रिज कोलैप्स हो जाता है। तो व्हाट हैपेंड देन, उनके जो यू कैन से एनर्जी है, उनका जो साउंड एनर्जी, उनका फुट स्टेप्स का जो साउंड एनर्जी है, वही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रेजोनेंस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या होता है जिसकी वजह से पूरी का पूरा ब्रिज कोलैप्स हो सकता है, राइट। ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। फिर देखो यहाँ पर कन्वर्जेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। तो बेसिकली ये तो आपको पता ही होगा कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी काफ़ी सारी जगह यूज होती है। फॉर एग्जांपल हमारे फैंस में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये रोटेट करता है, तो मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में चेंज हो रही है, रोटेशन में चेंज जा रही है। फिर देखो, मैग्नेटिक एनर्जी में यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए। आप इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करती हैं, राइट। फिर देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने केमिकल एनर्जी में चेंज कर दी बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब जब आप क्या करते हैं, पानी के अंदर H2SO4 डालकर जब आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, H2 और O2 अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है और मॉलिक्यूल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं, राइट। फिर देखिए, जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक एनर्जी है, यही मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी करते हैं, जो कि आप क्लास 10 में स्टडी करेंगे, ठीक है। बेसिकली दैट मैग्नेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है इन मैग्नेटिक कंपास, जस्ट लाइक दिस। सो ये जो मैग्नेटिक कंपास की सुई इधर उधर हो रही है, वो क्यों हो रही है, बिकॉज इट हैज मैग्नेटिक एनर्जी एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल वन, तभी तो वो उसको मूव करवा पा रही है, राइट। फिर देखिए, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। सेल सबसे बढ़िया एग्जांपल है। सेल के अंदर होते हैं केमिकल्स, ये केमिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तभी तो जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो करने लगती है, ठीक है। फिर आप देखिए, केमिकल एनर्जी लाइट में चेंज हो जाती है, हीट साउंड मैकेनिकल एनर्जी होती है जब कभी भी एटम बॉम्ब्स एक्सप्लोड होते हैं, सो दैट एनर्जी इज ऑल्सो बीइंग कन्वर्टेड, ठीक है। फिर आप देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी किस तरीके से और अलग अलग फॉर्म्स में एनर्जी में चेंज हो जाती है, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। हमने तो सुना है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो वहाँ पे यही तो होता है, न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हम यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कौन करते हैं, सन में ऐसा होता है, वहाँ पर बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी और वही हीट और लाइट में कन्वर्ट हो जाती है और वही हम तक पहुँचती है, ठीक है। उसके अलावा देखो, न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस, यही तो वहाँ होते हैं सन पे, राइट। तो बेसिकली देखो, आप कितने सारे एनर्जी के कन्वर्सेशंस देख सकते हो। यहाँ पर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है, बट वो कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती,
ठीक है, ये मेन चीज आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन में समझनी होगी और होती भी है। ठीक है, आप देख लीजिए इसे। ऑलराइट, तो देखो आज हम लोग यहाँ पर ही हमारा लेक्चर फिनिश कर रहे हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोगों ने आज पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, एंड फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हम एक बार जो है एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सेशन देखेंगे। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट lecture also. I'm ending this lecture right now. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.